तेरा आधा बुक कभी भी बाकी है, ध्यान रखना। पहला आधा किसी को समझ में नहीं है, दूसरा आधा वो लोग गिर जाएंगे लोग। 25 पेज है, 25 ठीक है। स्लाइड शो है, स्लाइड शो नेक्स्ट करते हैं। बस वो बटन दबाते वो नीचे वाला एरो दबाते हैं, नीचे वाला एरो स्पेस बार तो सबको सुनाई दे रहा है क्या? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। इसका वो म्यूट है, इसको ऑन करो। ये तो म्यूट है ना, म्यूट क्या था? नहीं क्या, नहीं जो ऑन है कि नहीं? हेलो, ये तो नहीं नहीं अनम्यूट राइट है उसमें। ये नीचे तक कनेक्ट हुआ है, सीमेंस सिस्टम कर दें क्या? स्पीकर है ये। एक से अभी आया। सबको सुनाई दे रहा है क्या? आ गया। सबको सुनाई दे रहा है? ऋषभ हाँ सुनाई दे रहा है बलदेव। यस सर सुनाई दे रही सर। Good afternoon, everyone. This book is a biography by Abhishek Kumar, who is a law student in Delhi University. Since childhood, Mask was always a yes. all tab. पहले वो चेक करना पड़ेगा पहले। ये चल रहा है? नहीं चल रहा। इससे मस्त ही जा रहा है। अब कर देगा कुछ। नेक्स्ट लाइन कर रखिए आप। ग्राफिक्स है। Elon Musk just completed 50 years of his age last month. He was born in Pretoria, South Africa, which is a hour's journey from Johannesburg. He went for his studies to Canada where he completed all his bachelor's degree in physics and economics from Pennsylvania University, Canada. He had a very rough childhood life. Since in the school, he was beaten up by many students and he was hospitalized for many times. He was not good at athletics at all. When he was a kid, his parents got divorced and he and his brother decided to stay with his father. By profession, his father was an engineer and mother was a dietitian. During his courses in the University of Pennsylvania University, he funded all his schooling by doing the odd jobs. Like he was working in a factory or maybe doing some computer repairing. And he also converted his rented house into a nightclub during the weekends. So he kept on saving some amount for his future growth also. After completion of studies, he and his brother Kilbert decided to move on to San Francisco to start some business. He also persuaded the PhD from Stanford University, but never completed that, just with the idea that he wanted to start a business. When he entered the San Francisco, at that time it was the start of the internet facility to the common public.
So he wanted to do something on the web. So he wanted to do something advertisement kind of thing into the internet facility. But that was a totally a new concept with the common people, and they thought it was a dumb idea that it will be followed by the people. He wanted to do an online network for the doctors, but it failed just because nobody was accepting that idea and was not ready to pay for the services. But he kept on improving the software, and he was doing all the coding job day and night. And his brother Kimball was doing the marketing for the firm. Later on, they decided to enroll all the local shops beside the bay to enroll for the online advertisement in their site. But starting में उसका कोई acceptability नहीं था. Later on, they rented an office and created the software to a great extent. Whereas after that, उन्होंने काफी companies को approach किया, like motor dealers, real estate company, where they received a good response. और उसके साथ ही उन्होंने अपना business expand करना शुरू किया. जब तक ये काम हुआ तब तक they were out of funds. तभी उनको VC मिला और $3 million का with a Canadian businessman, तो उनको फंडिंग अपने टीम खड़ा करने के लिए एक अच्छा टाइम मिल गया. And they plan to expand the business to the national level. जैसे जैसे टीम एक्सपेंड हुआ तब उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, because they wanted to do the business out of box, whereas the board was thinking to do the business in a conventional way, and he was thrown out of the chairmanship of Zip2. Later on, the board decided it was an online platform. It was like a dictionary, which was the internet version of Yellow Pages with the mapping and directions. They took the information and the technology from Neptec, that was a computer solution thing, which provided the digital map and the directions. Later on, board decided in 2000. In 1999, the board decided to sell the company to Compaq Computer at $307 million. Out of that, both the brothers made $22 million out of that. बस. By the time they sold this company, the Musk had a new plan to start the online banking system, which he got an idea when he was doing the internship in his banking, the Bank of Nova Scotia. During that time, he always thought that the investor had money, but they were dumb. So they don't know how to manage the things. And he was of a thought that हम लोग को banking is not of a traditional business कि मैं cashier के पास जाऊँ. It has to be a person-to-person banking, on everything should be online. So they started. He did not believe that it is person to person. He believed that it should be a person-to-person online banking rather than going to the cashier and all those things. So he wanted to start something on a full-fledged commercial institution online with the savings, checking, brokerage, insurance companies and all. So he was joined by 4 of his friends who was working with the Bank of Nova Scotia, who became later on the co-founder in the X.com. PayPal was not his company, X.com. लेकिन उसको खुद को नॉलेज नहीं था, लेकिन वो बुक वॉर्म था, बुक्स पढ़ने का उसको बहुत आदत था, तो उसने सारे बैंकिंग कनेक्शंस पे काफी बुक पढ़ा to know the litigations about the banking sector going ahead. और उस समय वहां पर भी रेड टेपिज्म जैसे इंडिया में है वैसे यूएस में भी है. To start the new things, they need to go through many hassles of the government systems. Maybe X.com में भी VC फंडिंग मिली उसको मिला है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 2-4 महीना चला गया, उसके जितने भी को-फाउंडर मेंबर्स थे वो टेक्नोलॉजी पार्ट वगैरह को देख रहे थे, किसी को बैंकिंग का एक्सपीरियंस ज्यादा एक्सपीरियंस था उसके कंपैरिजन, तो उनमें भी कुछ क्लैशेस होने लग गए कि दे वांटेड टू डू समथिंग कि अपना कन्वेंशनल वे, और ये चाहता था कि बैंकिंग इंडस्ट्री शुड गिव अ रीथिंक टू इटसेल्फ.
तो वहां पर भी क्लैशेस होने लग गए और 2-4 फ्रेंड उसके वापस छोड़ के चले गए और मास्क वाज लेफ्ट अलोन इनटू द कंपनी विद few of his loyal employees, but he never gave up to his idea. और वो लगा रहा उस काम में कि मुझे ये काम करना है. Then the finished problem started coming up. और वो काफी VC लोग के पास गया with the idea, but he never received a good response. Ultimately he received the VC. उसके साथ उसने वापस अपना नया टीम खड़ा किया with the banking channels and all. अपना लाइसेंस लिया म्यूचुअल फंड्स एंड द बैंकिंग चैनल्स के लिए और उसने अपने बार्कले बैंक के साथ भी उसने टाई अप किया. In 1999, it became the first public world's first online banking system. X.com. फिर उसने काफी अपना 200 मिलियन कस्टमर्स भी बना लिए और उन्होंने नया नया इंसेंटिव सिस्टम शुरू किया. जो भी उसमें वहां पर ऐड होता था उसको $10 दे देते थे. कोई रेफरेंस होता था तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलता था. पर्सन टू पर्सन बैंकिंग सिस्टम उन्होंने शुरू किया था. बट later on, to grasp the market, there was another company called PayPal, which was started by 2 of the engineers. वो उसके साथ काफी कंपटीशन होने लग गया और दोनों कंपनी पैसा जमकर लुटा रही थी फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल. लेकिन उसको लगा कि अल्टीमेटली दिस वोंट बी गोइंग ऑन बिकॉज ही विल रन आउट ऑफ फंड्स अगेन. तो उसने पेपाल के साथ अपना पार्टनरशिप कर लिया टू जॉइन द फोर्सेस. लेकिन जैसे जैसे उनका 2 महीना 3 महीना बीता वापस उनमें क्लैशेस होना शुरू हो गया कि अबाउट द डिजाइनिंग कि जैसे इसका फेवर में था कि माइक्रोसॉफ्ट लेना चाहिए एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जबकि उनका व्यू था कि दे शुड गो अबाउट द लाइनेक्स. बट लाइनेक्स वाज नॉट अप टू डेट software for that juncture, but the board never listened to it. Again, he had to lost his chairmanship in this joint venture. और जैसे उनके भी पेपाल का जो एक फेलिंग करके बंदा था उसने भी इसको छोड़ दिया था. लेकिन जितने भी एम्प्लॉइज और बोर्ड में था उसको डिसाइड किया कि उसको सीईओ बना देते और इसको चेयरमैनशिप से निकाल दिया गया था. लेकिन जैसे ये उसके जाने के बाद वाकई में कंपनी में तकलीफें आने लग गई. काफी फ्रॉड्स वगैरह होने लग गए थे पेपाल में. उसका जो पेपाल का को फाउंडर था उसके छोड़ने के बाद इसको काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी. फ्रॉड्स वगैरह होने लग गए थे तो उसको सीईओ बना दिया गया जो पेपाल का ओरिजिनल फाउंडर मेंबर था. एंड देन द बोर्ड डिसाइडेड टू उस समय अचानक फिर टेक बस्ट होने लग गया. तो मेनी ऑफ द इन्वेस्टर वांटेड टू एग्जिट द वेंचर and the board decided to sell it off to eBay at $1.5 billion at that juncture. And he made $250 million out of this venture. बस का हमेशा ही रॉकेट साइंसेस और स्पेस ट्रेवल के लिए हमेशा उसका एक स्पेशल इंटरेस्ट था. जो वो बचपन से भी बुक्स वगैरह जितने भी पढ़ते थे सभी इसी के अलाइनमेंट में ही था उसके लिए. तो उसने डिसाइड किया कि आफ्टर 250 मिलियन उसको पैसा मिल गया तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट रीएलोकेटिंग टू लॉस एंजलिस व्हिच वाज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर बोइंग नासा यूएस एयर फोर्स. तो वहां पर जाकर उसने काफी फर्स्ट इंटरेक्शन अपना शुरू किया जो कि एरोनॉटिक कम्युनिटी के साथ जो कि मार्स सोसाइटी कहलाता था. दैट वाज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग इन द मार्स. उसका हमेशा एक इंटरेस्ट था कि he always wanted to take the human civilization to another planet and Mars was perfect for it. तो वो उस सोसाइटी के साथ काफी अपना कनेक्ट बनाया और ताकि उसको स्पेस इंडस्ट्री के बारे में पता लगने लगे टू ग्रेटर एक्सटेंट. First exchange with the aeronautic community began with the Mars Society and later he became a member group dedicated to exploring and settling at the Mars. उसको स्पेस ट्रेवल के लिए काफी इंटरेस्ट था तो उसने एक और अपने नासा वगैरह के फ्रेंड्स वगैरह से काफी मिलने लगा ताकि स्पेस को कैसे रॉकेट लॉन्च वगैरह ये सब को क्रिएशंस में हेल्प किया जा सके. उसके लिए उसने $8 बिलियन अपना लगाने $8 मिलियन ही वांटेड टू इन्वेस्ट व्हिच वाज हिज टोटल बजट $20 मिलियन. तो वो रशिया के पास भी गया ताकि वहां पर वो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव रॉकेट्स बाई कर सके जो कि यूएस में चीप रॉकेट्स वगैरह मिलती ही नहीं थे. बाहर से लाके
लास्ट सकता था लॉन्च $10 है, इट वाज नॉट अ बजट जो कि उसका पूरा टोटल बजट में फिट नहीं होता था। तो उसके पास और कोई कि मेरे को अपने आप ही मिसाइल्स बनाने पड़ेंगे। सो दैट वाज द स्टार्टिंग फॉर द स्पेसएक्स व्हिच केम इनटू लाइफ, जहां पर उसने देखा कि अफोर्डेबल अपने रॉकेट्स वगैरह कैसे बनाए जाए। SpaceX was started building mid-size rockets to transport the small satellite. उसने 2 साल का प्रोजेक्ट लिया था कि मैं अपने रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च कर दूंगा। By that time, $20 million will be enough to fund the project. लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, उसका रॉकेट्स काफी बार और 3-4 अटेम्प्ट से ज्यादा वो ले नहीं सकता था विद द लिमिटेड बजट। तो उसने 3-4 बार ट्राई किया, 2 साल में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, इट वाज एक्सटेंडेड टू 4 years and he was running out of the budget. तो उसका फर्स्ट रॉकेट जो उसने स्टार्ट किया था दैट वाज Falcon 1, जो कि उसका फेलियर था, एंड द फंड द प्रोजेक्ट ही हैड टू सेल हिज पेपाल स्टेक। वो पेपाल का जितना रिमेनिंग स्टेक था वो भी बेच दिया, और वो अपने पेपाल का स्टेक बेचने का था कि मुझे स्पेसएक्स को खुद ही फंड करना था, जैसे पहले की तरह रिपीट नहीं हो। वो अपना चेयरमैनशिप वगैरह, अपना जो फाउंडर मेंबर का स्टेटस था, ही डज नॉट वांटेड टू लूज आउट दैट, इसीलिए अपना पेपाल का स्टेक बेच कर दी इसने, और अपने काफी बार उसको एसेट्स भी बेचना पड़ा जस्ट टू फंड द स्पेसएक्स। यहाँ लिखा हुआ है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ फैल्कन, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? सक्सेसफुल 2008 में हुआ, उससे पहले। फिर पेपाल का स्टेक बेचने के बाद उसने अपना एक और नया टीम खड़ा किया, जिसमें वो अपने को बजट को लिमिटेड करने के लिए ही ऑलवेज हायर्ड द न्यू इंजीनियर्स rather than the experienced one, ताकि उनको मैक्सिमम एनर्जी लेवल रहता है और वो लोग काम भी डेडिकेटली कर सकते हैं। फिर 2008 में Falcon 1 and Falcon 9 came into existence, which was successfully launched, और उसके बाद उसने गवर्नमेंट बिडिंग वगैरह शुरू करा ताकि ISS में उससे सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, एंड इन द सेम ईयर ही गॉट अवॉर्डेड 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसको नासा से मिल गया फॉर द सप्लाई टू द ISS। उसके बाद कभी भी ये स्पेसएक्स को कभी भी स्टारलिंक ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर इट इज अ कोलैबोरेशन विद फ्रांस, चाइना, जापान एंड US। पर आज लिखा सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ Falcon 1, पर आप तो बोला अनसक्सेसफुल। स्टार्टिंग में 3-4 साल से, पहले 2008 सक्सेसफुल 2002 से लेकर उसको 4 तक कंप्लीट करने का सोच रहा था, लेकिन 8 में उसको सक्सेस, सो उस ड्यूरेशन में वो आउट ऑफ बजट हो गया। वो हमेशा एक बात बोलता था कि आई वांट टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव ऑन, और वो पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहता था, एंड टेस्ला वाज द परफेक्ट फिट टू कंप्लीट हिज ड्रीम। जेबी स्ट्रबल was an engineer जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेलरेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो एक प्रपल्शन सिस्टम होता है कि जहां पे इंजन और बैटरीज को कनेक्ट करके जो उसको एक किक स्टार्ट देता है, जहां से अपना इंजन स्टार्ट हो सकता है। तो उसने भी, जेबी स्ट्रबल को भी काफी मेंबर्स मिले जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह के थे, जो अपने एक लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कुड नॉट अफोर्ड देयर एक्सपेंडिचर्स, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया। Then they joined hand with Stubble कि बोला हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन Stubble was also with the limited means। तब वहाँ सिलिकॉन वैली में कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आता था, ऐसा हो गया था कि मस्ट विल फंड दोस्त थे, ये भी उसको अप्रोच किया कि मुझे फंडिंग करो, और वो लोग सिर्फ एक स्टेट ऑफ आर्ट बनाना चाहते थे rather than the commercial usage of their engines, जो जेबी स्ट्रबल का पॉइंट ऑफ व्यू था। और उसने मस्क के पास गए और उसने भी उसको फंडिंग कर दिया, और वो चाहता था कि इसको कमर्शियली हम लोग लॉन्च करें गोइंग अहेड। देयर वाज अनदर सेट ऑफ 2 इंजीनियर्स, एबरहर्ड एंड टार्टने, who started the Tesla motors in the, it was homage to the Nikola Tesla, जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक को कैसे स्टोर किया जा सकता है। She was the founder of that, Nikola Tesla, इसीलिए इन्होंने इसका टेस्ला मोटर्स रखा ना। ये लोग भी एसी प्रपल्शन करके जेबी स्ट्रबल का जो कंपनी था उसके पास काफी बार अप्रोच किए फॉर द टेक्नोलॉजी नो हाउ उनको मिल जाए और अपना एक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सके, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए दे रिक्वायर्ड $7 million,
और उनके पास टू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन, फैक्ट्री वगैरह जो भी उनको इनपुट वगैरह लेने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था। तो उनको इसी एपी प्रोपल्शन के एक बंदा था जिन्होंने इसको मस्त से कनेक्ट किया कि बोलो वो तुम लोग का फंडिंग कर देगा, एंड ही इज एंथुसियास्टिक अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड नाउ। और जैसे ही उन्होंने अपना प्रपोजल वगैरह प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उसको दिखाया, एंड ही वाज टोटली कन्विंस्ड टू फंड दैट थिंग, और उसने 6.5 बिलियन का चेक उनको राइट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टेस्ला कंपनी को फिर ही बिकेम अ लीडर टू कंबाइन द टीम्स of AC propulsion which was started by JB Straubel and the Edelberg, ताकि इन दोनों का टेक्नोलॉजी मिलकर तभी एक इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जैसे ही टेस्ला मोटर्स ने अपना टेस्टिंग वगैरह शुरू किया, उनका भी 2-3 साल का बजट था कि बोला हम लोग को स्टार्ट करना है, लेकिन इट केम आउट ऑफ बजट, क्योंकि काफी बार बैटरीज का वो उनका था कि कस्टमर सेफ्टी फर्स्ट, तो वहां पर काफी बार बैटरी एक्सप्लोर हो जाएगा तब क्या होगा, और भी उसमें नया नया टेक्नोलॉजी वो लेके एम्बेडेड करना चाहते थे। एंड टेस्ला मोटर्स डज नॉट हैव एनी स्टोर ओवर देयर, वो कभी भी डीलरशिप्स वगैरह के साथ काम नहीं करते। इट्स लाइक एप्पल स्टोर, वहां पर जाइए आप, आपको किस तरह का कार चाहिए कॉन्फ़िगर करो एंड दे विल होम डिलीवर यू द थिंग्स, उस तरह का सिस्टम चलता है इसमें। और उसने काफी टेक्नोलॉजी, अभी जैसे इग्निशन वगैरह स्टार्ट करना है तो वो कार ड्राइवर अब सीट पे बैठ जाए तो कार स्टार्ट हो जाता था, तो काफी नया टेक्नोलॉजी। अगर कहीं का कार खराब हो जाए तो देयर पीपल विल कम एंड पिक अप द कार, रिपेयर करके दे देता था। काफी वाइपर्स वगैरह खराब हो जाए तो वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से इन्होंने कर दिया था कि वहीं से ठीक किया जा सकता है, सब सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह से। Many flaws required a huge R&D investment due to the late launch was a verge of bankruptcy. वो भी एक समय में ऐसा आ गया था कि अपना फैक्ट्री को एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन by that time SpaceX was a cash surplus, तो उसने वहां से फंडिंग स्टार्ट कर दिया टू टेस्ला की। उन्होंने क्या किया, जितने भी अपने हाईवेज वगैरह थे सारों में इलेक्ट्रिक पॉइंट इन्होंने खुद ही फंडिंग लगा रखा है, एंड दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द हाईवेज इन द यूएस, ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस फंडिंग के बाद इन्होंने 2010 में वीसी 2009 में उनको मर्सिडीज और टोयोटा से भी काफी कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, एंड दे आल्सो वीसी फंडेड द टेस्ला। 2010 में टेस्ला हिट द आईपीओ नेस्डैक और इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन जैसे ही इन्होंने 2010 के बाद 2012 में अगेन द टेस्ला स्टार्टेड फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन बहुत था। एक्स मॉडल एस करके एक कार था व्हिच वाज वन ऑफ द चीपेस्ट वन उनके हिसाब से, लेकिन उसमें भी क्या था, रिजर्वेशन बहुत था, लेकिन दे कुड नॉट कन्वर्ट इट टू द एक्चुअल सीट्स। तो एक समय ऐसा आ गया था कि टेस्ला को गूगल के पास जाना पड़ा टू एक्वायर द कंपनी, कि मेरा कंपनी एक्वायर कर दो ताकि मेरा फैक्ट्री चल पाए। लेकिन सडनली अ मिरेकल हैपेंड कि एक सेल्समैन ने अचानक इतना रॉबस्ट सेल्स कर दिया कि उसका सारा 110 मिलियन या 150 मिलियन डॉलर्स दे अर्न विद इन अ सिंगल ईयर, और उनका ग्रेजुअली 1-2 साल में उन्होंने जितना भी स्पेसएक्स से लोन भी लिया उसको भी चुका दिया, एंड दे बिकेम अ सक्सेसफुल और कैश रिच होने लगी। अभी वो हमेशा ये चाहता था कि जैसे लाइफ हो मार्स में, देन ही वांटेड टू मेक द पॉल्यूशन फ्री अर्थ और प्लेनेट लेट्स से। तो वो ग्रीन फ्यूचर के लिए भी सोचता था कि सोलर सिटी, जैसे मोदी जी सरकार में आए थे, यूएस गए थे, कि मैं टेस्ला पीपल कि बोले सोलर सिस्टम को चीप एंड बेस्ट कैसे बनाया जाए अपने। तो जैसे ही एक मस्क के कजन थे कोई राइव नाम, उन्होंने तभी 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया था जिसको बेचा तो उनको पैसा बहुत कमाया। देन दे केम अप टू द मास कि बोला अब हम लोग को नेक्स्ट किया जाए, तो दे ही गेव हिम द आइडिया ऑफ सोलर पैनल सिस्टम। तो इन दोनों ब्रदर्स को कोई आइडिया नहीं था सोलर पैनल्स का। 2 साल तक इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस और काफी स्टडी किया इस मैटर के ऊपर। In 2006 they started a company called Solar City. स्टार्टिंग में ये लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट्स खरीदते थे किसी और के पास, और इन्होंने स्टडी किया कि एक एरिया में कितना सनलाइट जाता है,
हर एक बंदे का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, वो लोग कितना यूसेज कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से कस्टमर के पास जाने से मेरा वाला माल बिक सकता है, और उनको भी लीजिंग फैसिलिटी दिया ताकि वन टाइम में कोई नहीं खरीदने वाला था। फिर उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू किया, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द सोलर पैनल्स, और धीरे धीरे करके नाउ दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर सिस्टम्स इन यूएस। और फिर उन्होंने 2012 में दे केम अप विद अ आईपीओ व्हिच वाज लेटर वैल्यूड एट $7 billion। फिर अभी रिसेंटली ही स्टार्टेड अ न्यू कंपनी कॉल्ड बोरिंग कंपनी, दैट इज अ टनल सिस्टम। अभी मुझे नहीं पता कि वो स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ। उसमें क्या है कि जैसे कार जा रही है तो वहां पर कोई एक स्केट टाइप का बना दिया रोड, उसमें पार्किंग करो, दैट विल टेक यू डाउन द टनल, और जिस जगह पर भी एग्जिट करना वहां पर वो बाहर निकल कर आ जाएगी, ताकि आप अपना ट्रैफिक सिस्टम से बच जाओ। दैट मे बी एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन टनल सिस्टम शुरू किया है अंडर छुट्टी हो जाए वहां निकल जाएगा। वहां से बॉम्बे पुणे में बन रहा है हाइपरलूप थोड़ी नहीं है। हाँ हाइपरलूप का पार्टी उसको ही बोरिंग कंपनी का नाम दिया। हाइपरलूप नहीं, दो अलग अलग चीज है। ये वाला स्टेटिंग सिस्टम है, उस पे स्टेट पे बैठ जाती है गाड़ी, वो नीचे चली जाएगी टनल सिस्टम में। वो मल्टी लेयर टनल सिस्टम बना रहा है। Successful principles of Elon Musk: aspire for the key with your roots on the ground। वो हमेशा एस्पायर करता था कि मुझे मार्स में भी दुनिया बसाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि बोले मुझे अर्थ के लिए नहीं सोचना। तो ही वर्कड ऑन बोथ द थिंग्स पैरेलली। तो उसने सोलर सिस्टम्स के लिए भी वर्कआउट किया, मार्स की लाइफ के लिए भी कर रहा, और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी वर्कआउट कर रहा एट द सेम टाइम। नेवर गिव अप। उसके अगर चाइल्डहुड में देखो, उसके पेरेंट्स वाज नॉट वेरी कोऑपरेटिव विद हिम, उसने स्कूल में पिटाई भी हो गई, लेकिन वो कभी भी, और उसके पास पैसे भी नहीं थे एजुकेशन का, लेकिन और जॉब्स करके अपना लाइवलीहुड चला रहा था, तो कभी भी वो डिस्करेज नहीं हुआ। सो लाइफ शुड गो ऑन लाइक व्हाट यू डू। वो जैसे अगर आज मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आई शुड डू अबाउट दैट जॉब फुल हार्टेडली। अगर मैं हाफ हार्टेडली कोई भी काम करूंगा तो आपका कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे इसने पीएचडी बीच में छोड़ दिया टू रन द बिजनेस, तो ये बोलता पीएचडी मेरा काम नहीं आता शायद। तो वो उसका हमेशा था कि जो चीज मुझे करना है तो लेट्स फुलफिल विद द फुल डिजायर। आज भी वो 100 घंटा पर वीक काम करता है, और उसकी वजह से उसका डाइवोर्स भी हो गया, जस्ट बिकॉज ही वाज सो ऑक्यूपाइड विद हिज बिजनेस। तुम्ही के घर पे तुम ये बोल रहे कि इलोन मस्क के बारे में तुम बोल दिया था, आई कांट से दैट। टेक अ रिस्क। वो बोलता है जब भी आज उसने टेस्ला मोटर स्टार्ट किया या स्पेसएक्स शुरू किया, जितना उसने पैसा पुराने स्टार्टअप से कमाया, सारा होल हार्टेडली सारा पैसा लगा। वो बोलता है जब बचपन, मतलब जब यंग हो, यू हैव मोर कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रिस्क। जैसे मैं ओल्ड होऊंगा तो मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफी बंदे मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। अब जैसे पल्लव बोलता है शेयर खरीदना तो 1000 खरीदो, 100-200 में क्या होगा भाई? 1000 में नहीं तो आप जीरो बोल रहे हो। Don't listen to little man। जैसे वो स्पेसएक्स अपना शुरू कर रहा था, काफी दोस्त उसके पास आए, बोले रॉकेट कैसे उड़ जाता है भाई, उसको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाते थे ताकि तू स्पेसएक्स शुरू नहीं कर। तो हमेशा एक कॉमन आदमी या जो भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स होंगे नया आइडिया के लिए, वो हमेशा तुमको डिस्करेज करेंगे कि तुम नया चीज नहीं कर। तो उस जगह पर हम लोग को नॉइसेस को इग्नोर करके अपना दिल का बात मानकर एंड डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू। एक ही साथ में उस टाइम टेस्ला भी चालू कर लिया और SpaceX भी चल रहा था। स्पेसएक्स चल रहा था, उसके बाद टेस्ला में पेपल जब बैठा था तो पेपल में उसको 250 मिलियन मिला था ना इनिशियली। लेकिन क्या है, वो सारा पेपाल का 100% स्टेक नहीं बेचा था, उसके एक सर्टेन पोर्शन बेचा था। बेसिकली फाउंडर वो नहीं था पेपाल का, वो मर्ज था। ये सारे मर्जर है उसके Zip2 के अलावा। X.com को मर्ज किया।
एप्पल का टेस्ला में भी खुद का आज नहीं आज पेपर में उसका स्टेक नहीं मिला आउट ऑफ पेपर। टेस्ला में भी उसका टेस्ला भी उसका कंपनी नहीं है इसका मतलब तो लगा रहा है टेस्ला वो एडिटर फॉर पीपल भाई शुरू में दिखा भाई का भाई भी है कि लेकिन वो अपना वेंचर चलाता रहता है कुछ का। नहीं तो उस टाइम फिर जब आईपीओ आने के बाद तो हिट हो गया था उसके बाद 2 साल में ही तो पोजीशन वापस बैंक वापस क्योंकि सेल्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे और जो उनकी फैक्ट्री थी वो 10 कार से ज्यादा एक हफ्ते में प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही। आज के दिन में क्या प्रोडक्शन या एवरेज प्राइस क्या ऐसा कुछ दिया है कि टेस्ला का 30 या 50,000 में एस मॉडल का दाम है 30 to 50,000 डॉलर्स USD। पर वीक 7,000 करीब प्रोडक्शन होता है आज के लिए। उस समय में था मतलब 10 कार से ज्यादा वीकली मार्केट प्रोडक्शन ही वैल्यू नहीं सारा कर पा रहा। ऑटोमोबाइल कंपनी से ज्यादा होगा टुगेदर भी नहीं मिला के। उस समय गूगल से ऑलमोस्ट फाइनलाइज ही हो गया था, पता नहीं वो सेल्समैन ने ऐसा क्या सेल्स किया कि बच गया। तो उसने मर्सिडीज तो फंडिंग किया तो उसको तो उसका वैल्यूएशन में उसको तो मिला होगा कुछ इसी में केवल एग्री कर गया। टेस्ला को तो बेचा ही नहीं ना, उसने तो आईपीओ में उसको स्टेक VC फंडिंग वाला फंडिंग मर्सिडीज एंड टोयोटा लिखा है हाँ उसमें तो उसने उसके कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था और 10% शेयर मिला था उसको मर्सिडीज को। वो शेयर्स टेस्ला है कि मर्सिडीज के पास होगा पता नहीं उसका आईपीओ में अल्टीमेटली फायदा तो मिला होगा वैल्यूएशन ये वैल्यूएशन तो मिला ही है उसको। तो मर्सिडीज तो अलग है एक थोड़ा है अलग 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 बट ऑफिस पहले मर्सिडीज ने किया था ताकि उसको लिथियम आयन बैटरीज मिल सके इससे। और लास्ट में अब जो बोरिंग कंपनी थी अभी परस्यू कर रहा है क्या कि चल रहा है वो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। हाइपरलूप भी तो उसका ही है। हाइपरलूप की तरह बात बुक में भी नहीं था कुछ खास इसमें। Hyperloop again is a concept designed by somebody else, but he is propagating it and pushing that idea. हाइपरलूप क्या है फिर? हाइपरलूप ट्यूब बनेगा, ट्यूब के अंदर जैसे मेट्रो टाइप होता है, तो वो ट्यूब का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए एक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के अंदर एक पॉड डाल दिया, यहाँ से प्रेशर होगा तो ये पॉड मूव करते जाएगा। उस टेक्नोलॉजी पे वो बेसिस पे, इसमें गाड़ी और ये वो नहीं। जो बोरिंग कंपनी वाले, मान लीजिए रास्ता है, रास्ता का एक जगह पे आके स्टॉप पे रुका, आप जैसे बोला वो नीचे से खुलेगा, वो नीचे ले जाएगा, नीचे अब एक टनल बना दिया, अब वो स्केटिंग सिस्टम हो सकता है या ड्राइव भी करके जा सकता है, दोनों स्केटिंग सिस्टम भी दिखा रहा हाँ, था वीडियो में जो ज्यादा तो वही है। एंड फिर वो एक जो भी डेस्टिनेशन पे होगा वहां पहुंचेगा एंड देन अगेन आप हाइपरलूप इज मच फास्टर। हाइपरलूप तो क्या इट्स Instrument हो जाएगा तो वर्क्स ऑन वैक्यूम बेसिकली आप पॉड में यहाँ बैठा 10 मिनट में आप पूरा वैक्यूम जो है ना ट्यूब के पीछे वैक्यूम वो ब्रेक आदमी रहता है अंदर उसको पता भी नहीं पड़ेगा जैसे प्लेन में आप जब आपको पता पड़ता है कि प्लेन चल रहा है 10 स्पीड में एयर प्रेशर यूज करती है। सो मच भी एक्सपेंसिव थे, हम शायद अफोर्डेबल बना दे। बात समझिए 15,000 रुपए लिए सपोज करिए पूना सपोज 5,000 रुपए लिए पूना बॉम्बे पूना का एक आदमी का लोग लेगा ना हाँ अगर इतना जल्दी पहुंचेंगे तो या फिर 15,000 नहीं लेगा ऑब्वियसली पर टिकट कितना लेगा 1,500 2,000 3,000 50,000 रुपए ले लेगा भैया आज अब अमित भाई गाड़ी चला के जाता है गाड़ी चला के आता है अल्टीमेटली टाइम में मनी। हाँ तो अल्टीमेटली तो 3 घंटा का काम अगर 20 मिनट में हो रहा है। हरियाणा में भी तो कोई शुरू किया है प्लेन जो अम्बाला ना पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है, कोई 4-5 आदमी को उड़ा के ले जाता है 2,000 रुपया में। वो तो कार कंपनी का तो कोई कार क्या बोलते हैं उसको, तो कितना 50 तक हो गया 28 जून को 50 हुआ है। ये बुक इस पे भी बात करता है क्या कि ये जो भी बिजनेसेस ये रेवोल्यूशनाइज किया सारा ही ट्रेडिशनल बिजनेस था, तो इसका कैसे ऐसा थिंकिंग डेवलप होता है कि उतना जो लेगेसी बिजनेसेस है उनको वो इस तरह रेवोल्यूशनाइज और इतना डिफरेंट तरीके से सोचकर इम्प्लीमेंट या उनमें चेंज लाने का कोशिश कर पाते। जैसे ये स्पेस एक्स वाला बिजनेस है, इट वाज डोमिनेटेड बाय लॉकहीड और नासा, उन्हीं लोगों जैसे कंपनीज को देते। ये मजबूरी में ही सीखा है वहां पर। जैसे वो रशिया से मिसाइल पहले तो खरीदने गया ही था, लेकिन वहां पर जब इसको सेटबैक मिला तो इसके बाद लिमिटेड बजट था तो ये सोचा बोले व्हाई कांट आई स्टार्ट द थिंग। तो वो रेवोल्यूशनाइज उसको मजबूरी की वजह से सीखा है ये कहीं ना कहीं जाकर, लेकिन वो उसका हमेशा डिटर्मिनेशन था, वो इगोइस्टिक बहुत था। पूरी बुक्स में दिखाया गया, जो उसके चेयरमैनशिप भी गया था, ये बहुत एलिमेंट टाइप का पर्सनैलिटी था। पर लिमिटेड में तो कैसा था आज उस टाइम जो आप दिखा स्टेक बेटा 250 मिलियन। हाँ 250 मिलियन और 20 मिलियन लगाया तो तभी तो उसका पैसा था उसके पास। पैसा था तो उसने 2-3 राउंड फंडिंग किया, टेस्ला को फंडिंग किया, अपने भाई का सोलर सिस्टम्स को लेकर ऑन फंडिंग किया, तो हर जगह इसका फंडिंग तो चल ही रहा था।
एक बार तो ऐसा हो गया कि इसका मैकलेन करके कोई गाड़ी था, उसको भी बेचना पड़ गया था। The funding वाला टॉपिक also is discussed in the book, नाइकी वाला जो स्टोरी है, तो वो ये बोलता है कि वो परपेचुअली जो उसका फाउंडर है बहुत सक्सेस रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ किया है, लेकिन ग्रोथ इतना तेजी से होता है कि आपके पास उतना पैसा डालने के लिए नहीं होता। तो वो टेस्ला का ऐसा नहीं है कि बिजनेस रन नहीं है या वो नहीं है, जैसे सर बोल रहे थे कि डिमांड इतना ज्यादा था और उस लेवल पर उसके पास फंडिंग करने के लिए नहीं था उन डिमांड्स को मीट करने के, और सेल्स को एटलीस्ट लेट्स से 2-3 साल बाद कन्वर्ट होना था, उस समय पे वो पैसा पुट करने के लिए नहीं था। SpaceX को भी 6 साल तक फंडिंग करना और रॉकेट लॉन्चेस को फंडिंग करना टफ जॉब था, टीम भी ह्यूज था। टेस्ला अदर देन यूएस कहाँ और कौन सा मार्केट में दिखा है क्या? नॉर्वे, चाइना। चाइना आ गया? चाइना में तो ये रह गया। हाँ नॉर्वे में तो खैर 99% व्हीकल्स अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ टेस्ला का ही है क्या वो मार्केट? बहुत सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बाय द वे, सो वन ऑफ द थेसिस अगेंस्ट योर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड इज दिस। आपका जो थेसिस है ना कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट का भी आप कितना बड़ा फोकस है ऑन ट्रांसपोर्टेशन। उसमें हो सकता है ये तो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करने लग जाए तो ये मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? आज की डेट में एक आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इनटू फ्यूल्स। हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। एक कंबशन इंजन मतलब जो डीजल पेट्रोल इंजन है, उसमें कितना पार्ट लगता है? समझ गया, उसमें 15-20 हजार पार्ट लगता है कम से कम। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुल मिला के 20-50-100 पार्ट लगता है। इतना सारा जो ऑटो मैन्युफैक्चरर तुम लोग क्या करें? तो आज हम ऑटो ओईएम का बात नहीं कर रहे, कार मारुति और हीरो होंडा का वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरी। उसका क्या वाइप आउट हो जाएगा। तो मैं 3 साल में निकल जाऊंगा ना तब तक। मार्केट टर्मिनल वैल्यू काउंट करता है। You think they'll not innovate and move to that model? If the Move करने क्या हुआ? demand comes in place, Everybody cannot innovate. some will get wiped out. हाँ, some Agree. point is it is one industry which is ready for disruption, absolutely ready for getting disrupted. And जो अभी valuation discount है ये इसी के लिए इसी की वजह से भी हो सकता एग्जांपल सिंगापुर में भी तो नाउ यू कैन ओन अ कार, यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, लाइसेंस लेना पड़ता है गाड़ी। Odd even rule तो बहुत है। नंबर्स सारे में हैं। बुकिंग करना पड़ता है। तो आपका जैसे आप अभी आप बोले हम गाड़ी खरीदना तो आपका नंबर आएगा 12,000। अभी अभी मतलब एक साल में 500-700 पहले वाले लीड हो गए तो तब तक मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं But जाना then पड़ता, public टैक्सी। transport is made in such a way कि you हाँ, don't need your own transport. They have Lot of provided that मतलब kind of infrastructure. तो इसीलिए क्या है कि so always discounting रहेगा for some reason or other and it will always turn around. But क्या है कि हम लोग को इसको इग्नोर नहीं करते। हम जब अपने सेक्टर कॉल ले रहे हैं तो इसको डिस्काउंट करके दें। इसमें लॉजिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस आ सकता है नहीं आ सकता है वो सोचना चाहिए। आप जो कल बोला पॉइंट परफेक्ट है, लेकिन अभी आप जब बोल रहा था आप बोला कि कॉम्बिनेशन करना चाहिए। लेकिन नहीं लगता 5-10 साल लगी भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको ऐसे मालूम है कि चाइना में कितना परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइनीज मार्केट 40% में भी 40-50 एग्जांपल फंजियान जो प्रोविंस है उसका उसमें 90% इलेक्ट्रिक कौन सा प्रोग्राम व्हीकल अंदर कौनजाओ वगैरह नहीं सुनाओ नहीं लुधियाना का ये प्रोविंस है उसमें 90% इलेक्ट्रिक होता है कि तुम कॉफी शॉप में बैठो और तुम देखते रहो उनको जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं ना कि अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वहाँ पे ऐसे एक गाड़ी दिखेगा तो तुमको अच्छा ये कंबशन वाला and and all are Chinese products. and 99% of the public transport buses in China is now all electric. China का highest financial project. Norway. So public transport में इंडिया में भी बहुत एग्जाम्पल अभी जितने बसेस आए हैं टीएसटीसी नए बसेस बाई कर रहे हैं सबके सब they are buying all electric buses. तो इंडिया में भी एक जेवी हुआ है
चाइनीज कंपनी है, उसका इंडियन कंपनी के साथ एक जीवी करके दे आर आल्सो मेकिंग इलेक्ट्रिक बसेस. अशोक लीलैंड इज वर्किंग बिग टाइम. महिंद्रा काफी काम कर रहा है. हाँ ऑलरेडी क्या टाटा करके कर ही रहा है. टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स तो बोल ही रहा है कि जितने भी अभी जो नई गाड़ियां निकाले सक्सेसफुल नहीं, बट पर क्या है, हीरो एंड बजाज पे हमको डाउट है. अभी बजाज का चेतक आ जाएगा, लॉन्च तो कर दिया था उन्होंने अक्टूबर नवंबर लास्ट में. अभी डिलीवरी अगस्त में चालू कर रहे हैं चेतक, इलेक्ट्रिक चेतक. लेकिन क्या है ना कि तो बजाज का तो एक्टिवा टाइप का है ही है ना इसको, ना नहीं है क्या कोई? नहीं है. टीवीएस का है शायद, बजाज का भी होगा. पॉइंट इलेक्ट्रिक नहीं है ना, वो डीजल पे चलता है ना, पेट्रोल पे चलता है. अभी बैटरी, अभी चेतक जो आ रहा है वो बैटरी वाला है. लेकिन अभी क्या है, आप बात करिए, देयर इज ओला व्हिच इज लॉन्चिंग इन ऑगस्ट. ये ना उसका 3 फेज में फैक्ट्री आ रहा है. फर्स्ट फेज अभी चालू, सेकंड 2 फेज में आ रहा है. फर्स्ट फेज अभी अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग, हाँ प्लांट लग गई है. फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा अगस्त में. Second biggest plant. वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट टू व्हीलर प्लांट. बिग टाइम. 1 करोड़ बाइक बनाएगा ओला. हाँ 100 मिलियन बाइक्स, 100 मिलियन टू व्हीलर्स. तो कल उसका टीजर वीडियो आया कल, देखिएगा. छोटा सा बाइक है, 70-80 के स्पीड वाला है. तो हीरो, टीवीएस एंड बजाज आर राइट फॉर न्यू दिस एथर एनर्जी का वीडियो देखिए. ATHER बट हीरो पे तो स्टेक है. स्टेक है, इट्स अ माइनॉरिटी स्टेक, इट्स नॉट अ मेजॉरिटी. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए लिया तो उन्होंने देखा कि मर्ज कर लेगा आगे जाके. लेकिन क्या इतना फंडिंग मिल रहा है, हीरो को फटक से ले देगा नहीं. मतलब समझो ना, हीरो अगर ले जाएगा तो बजाज बोलेगा उसका. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होगा. देखा जाए तो ऑयल वगैरह का तो इंपोर्ट ही कम हो जाएगा. अब इसका उल्टा साइड, उसका रेवेन्यू भी लॉस होगा. तेल ये बिकेगा. सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स तो तेल है. इंपोर्ट कितना अनएम्प्लॉयमेंट आएगा आज के रेट पे. द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया इज नॉट रियल एस्टेट. रियल एस्टेट होता है नहीं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज ऑटो. ऑटो एंक में एक ऑटो एंक मैन्युफैक्चर करने के लिए एक इंडस्ट्री लगा, उसमें कितना आदमी एम्प्लॉयड है. So largest employer in the country is auto industry. So perspective, मतलब हर एक चीज का बहुत सारा मूविंग पार्ट्स है. It will all change. एग्जांपल जब देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि it will not happen. तो यहाँ पे जब पहले आसाम में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या था? Not tea. It was लकड़ी, not bamboo, timber. Timber was the biggest industry. 95-96 में जब टिम्बर पे बैन लगा था ना, तो पूरा सीन नॉर्थ ईस्ट खत्म हो गया. ठीक है, तो टी 2001-2-3 में स्लम पे जाने लगा. उसके सीमेंट के देयर विल बी समथिंग और द अदर व्हिच विल ऑलवेज कीप ऑन. सो इट इज नॉट कि खत्म हो जाएगा कोई भी. इट्स नॉट बाइनरी नहीं है. सो ओवरवेट, कोई भी चीज पे ओवरवेट जाने या अंडरवेट जाने के लिए रिजनेबल होके जा सकते हैं बस. एंड वही हम बोला ना कि इट्स नॉट 0-1 इवेंट. 0-1 वो नहीं, या तो मीडिया पर रिटर्न आ जाएगा बस. और क्या. हाँ ठीक है, मतलब अपने रीजनेबल वैल्यूएशंस मेंटेन करते हैं. we should make sure that the entry is at reasonable value. So example, आज के डेट में अगर आप फार्मा में एंटर करते हैं, then you are entering pharma at a much higher value, at a superior valuation. For example, even IT is not overvalued, but example small caps right now is overvalued. लेकिन लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो IT and pharma has delivered almost the same returns. ठीक है, फिर हम लोग IT को बोल रहे हैं कि undervalued है और pharma is overvalued. so IT Shambhya is not in देखिए फार्मा क्या है ना, इट्स सिक्लिकल. आईटी भी सिक्लिकल है. आईटी का साइकिल हमेशा 5-6 साल चला. मार्जिन एक्सपेंशन. एंड इंडियन आईटी हैज गॉन फ्रॉम बीपीओ केपीओ आउटसोर्सिंग मोड टू सॉल्यूशंस डिजिटल टेक्नोलॉजी में मूव किया. हम लोग आईटी बोलते थे पहले, लेकिन हम लोग कभी आईटी थे नहीं. हम लोग सर्विसेज साइड पे. अभी हम लोग डिजिटल साइड पे, क्लाउड साइड पे, सॉल्यूशन साइड पे.
The innovation now has started. तो मार्जिन एक्सपेंशन देखिए 2004 से लेके 2007-8 तक इंफोसिस टीसीएस हर क्वार्टर ना August month. ग्रोथ दिखाता रेवेन्यू ग्रोथ था क्वार्टर में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 10% क्वार्टर क्वार्टर 5% क्वार्टर 2013 से लेके 2017-18 तक दैट बिकेम फ्लैट और नेगेटिव कोई भी कंपनी में फ्लैट था कोई भी नेगेटिव मार्जिनल साइड दैट हैज स्टार्टेड टू रिवर्स फ्रॉम लास्ट 17 से 18 भी अच्छा रिटर्न दिया था एक साल के लिए ह्यूज अमाउंट हो सकता है कि हाँ हाँ, ये हाँ, साल में भी Prasad, हाँ बोलो I think pharma in our country is primarily innovation done by somebody else and we doing the job, hands-on job. Whereas in IT, we actually the brains behind it. So that's why the kind of growth that we can see in IT is probably much higher than what we can see in pharma. मतलब in terms of building तो ये capacity. बोलती है कि R&D नहीं होता अपना फार्मा में So हम लोगों का margin building उतना नहीं हो पाएगा ना. तो हम लोग खाली हाँ, production हाँ. कर रहे हैं, job work कर रहे हैं. हम कर दो इसको So thank you everybody to join who have joined. Satish, ये निकाल दो. Thank you.